Hello students, good morning to all of you. In class 12 commerce, we are studying the chapter change in profit sharing ratio among the existing partner, and we are doing the goodwill. So today we will discuss the new methods of calculation of goodwill, that is super profit methods. So students, tell me what is the super profit. So, so in this method, goodwill is calculated on the basis of the super surplus. You can say the surplus profit. Surplus profit earned by the firm in the comparison to the average profit earned by the other firm. Suppose करो कि students you are doing the business of stationery. There are many shops. Okay, they are earning average profit rupees 5,000 ईच. सपोज करो कि सभी 5,000 अर्न कर रहे हैं पर डे, लेकिन आप वहीं पे बिजनेस को रन करके 7,000 अर्न कर ले रहे हो. ठीक है, तो ये जो 7,000 आप जो अर्न कर रहे हो एबव 5,000 है, ये जो डिफरेंस है वो क्या है? ये जो डिफरेंस है वही हमारा सुपर प्रॉफिट है. सपोज करो कि नॉर्मल प्रॉफिट जो था वो 5,000 है, लेकिन आप कितना अर्न कर रहे हो? 7,000. तो ये जो 2,000 का जो डिफरेंस है ये हमारा क्या है? ये सुपर प्रॉफिट है. ओके, so if you are earning more than the average profit, that is called the super profit. Okay, so how it is calculated? If the business has no anticipated excess earning, suppose you are not earning the surplus, you are not earning the excess above the average, then you have your goodwill, your valuation of goodwill is nothing. Suppose you are nothing, you are earning nothing more than the average profit, your goodwill will be no, you have no goodwill. Suppose in the business, and whatever you are doing the business, in your business goodwill, valuation of goodwill is zero, the value of the goodwill is zero. Suppose करो कि आप जो सेम प्रॉफिट सभी अर्न कर रहे हैं वही सेम प्रॉफिट आप भी अर्न कर रहे हो, तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहाँ पे जीरो. अगर सपोज करो कि आप एक्सेस अर्न कर पा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू ऑफ द गुडविल होगी, जो कि जिसको हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे. तो जो एक्सेस प्रॉफिट है, तो अगर हम बात करें कि दो सच एक्सेस प्रॉफिट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल इज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सच सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल का जो एक्सेस प्रॉफिट है वही आपकी सुपर प्रॉफिट है, और सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे. इन दिस गुडविल we will find the goodwill by calculating two profit. First of all, we have to calculate the normal profit, then we have to calculate the average profit, then we will calculate the value of goodwill by the super profit into number of year purchase. So suppose in this example there are given, if the normal rate of the earning, if the normal rate of the earning applicable in the particular type of business is 15%. Okay, and if our firm is engaged in the same type of the business, is have invested 1 lakh as a capital, and if we are earning 25,000 as a profit, the normal profit rate is 15,000 on 1 lakh should be 15,000, whereas अर्निंग एक्चुअल प्रॉफिट इज 25,000. भाई आपने 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद ये जो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है वो क्या 15% का, यानी कि आपको 15,000 मंथ आप अर्न कर सकते हो नॉर्मली. बट योर एक्चुअल प्रॉफिट इज 25,000. तो दिस एक्चुअल 25,000 इज एबव द नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 15,000 है. तो जो एक्सेस प्रॉफिट है 25,000 माइनस 15,000, ये हमारा क्या है? 10,000 हमारा ये सुपर प्रॉफिट है. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट, देन वी विल फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, देन वी यूज दिस फार्मूला. तो गुडविल इज टू कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय द reasonable number of the year purchase. So first of all we have to find out the actual profit. Okay, first of all we have to find the actual profit, then we will calculate the normal profit, then we can calculate the goodwill by multiplying the number of year purchase to the super profit.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट है, वी विल टेक द कैपिटल इन्वेस्टेड हियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसका कुछ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। जिस भी बिजनेस में आप जा रहे हो तो 10%, 5%, 20% जो भी रेट होगा उसको नंबर डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपको कैपिटल इन्वेस्टेड पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या है, 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर 15% का रिटर्न है तो वो क्या हमारा हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला। यहाँ पे देखें एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी एक्चुअल प्रॉफिट हम कितना अर्न कर रहे हैं, यानी कि 25,000 अगर हम अर्न कर रहे थे और 15,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट हम लोग पता कर पाएंगे इससे। तो गुडविल का कैलकुलेशन क्या होगा, सुपर प्रॉफिट अगर हमारा कितना आ गया 10,000 और नंबर ऑफ ईयर अगर परचेज 4 है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 40,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये गुडविल हो जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, illustration number 10, that is based on the calculation of the goodwill by the using the super profit method. Okay student, तो in this question we will solve the goodwill by using the super profit method। तो यहाँ पे illustration में दे रखा है, तो यहाँ पे देखें तो 15, 17, 19 और 21 का ये प्रॉफिट दे रखा है 25,000 और 17 में 40,000 का लॉस है और 19 में 2,70,000 और 21 में 3,20,000। और यहाँ पे 15, 16 फिर 16 में फिर लॉस है 18 है 19, यानी कि 15 से लेकर 21 यानी कि टोटल जो है 6 साल का ये प्रॉफिट दे रखा है, 7 ईयर का प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इज है 12 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, यानी कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो 10% हो जाएगा इस पर। और द गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द 2.5 ईयर ऑफ द परचेज पे हम लोग ईयर ऑफ परचेज लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट वी विल दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट हमने अर्न, टोटल प्रॉफिट हमारा पूरे 7 ईयर का हो गया 10,50,000 डिवाइडेड बाई 7 कर दिया 1,50,000 का हमारा क्या हो गया, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने क्या किया 1,20,000, यानी कि 12 लाख पे 10% का हमारा नॉर्मल रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को ऐसे कैलकुलेट करना है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो 1,20,000 हो गया। अब देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग 1,50,000 अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमने जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1,20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा 30,000 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कर देंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 2.5 लेंगे ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 75,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमको 2 स्टेप में कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और यू कैन से द एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट first, then we will find the normal profit, then we will find the super profit uh, by deducting the actual from the actual profit to the normal profit, and then we will find the goodwill by multiplying the super profit to the number of year purchase। तो स्टूडेंट इस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। इफ हैव एनी प्रॉब्लम you can contact me। Okay student।